السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں سدرا میر۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں حافظ آباد سے، جہاں وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اپوزیشن پر باؤنسرز برسائے۔ کہا لندن میں بیٹھا شخص ہندوستان کی زبان بول رہا ہے، وہ فوج کو آرمی چیف کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا ہے، قومی اداروں پر حملہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن نیب کو ختم کرنے کے لیے بلیک میل کر رہی ہے، لوٹا ہوا پیسہ واپس ہونے تک کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ جو سرکس لگی ہوئی ہے اب ان کو مشکل پڑ گئی ہے، ہم نے نیب کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ان کے دور میں نیب ان کی غلام تھی، ساری بلیک میل اس لیے مجھے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح نیب کو ختم کر دوں تاکہ ان کی چوری بچ جائے۔ میں ان ساروں کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں، آج آپ سب کا مقابلہ عمران خان سے ہے، جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں کر لو، جب تک آپ اس ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کریں گے آپ کو نہیں چھوڑوں گا، چھوڑوں گا۔ عدلیوں کا بھی اٹیک کیا اور پھر پاکستان کے آرمی چیف اور ISI چیف کو اٹیک کیا، باہر لندن میں بیٹھ کے فوج کے خلاف سازش۔ جب اب کہتے ہیں کہ آرمی کا چیف جو ISI کا چیف ہے اس کو فوج بدل دے، تو کیا فوج کوئی ایک جمہوری ادارہ ہے؟ کیا انہوں نے نو کانفیڈنس موشن پاس کرنا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی جائے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کو کرے، یعنی کہ ہماری فوج تباہ ہو۔ ہندوستان کی زبان بول رہے ہو اپنی فوج کے خلاف، تمہاری طرح کے میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادق، ان کو انشاءاللہ جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے اور ان کا پیسہ نہیں نکالیں گے، انشاءاللہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارا بیانیہ اب عوام کا بیانیہ بن چکا ہے، کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مریم نواز نے 2 ٹوک اعلان کر دیا، کہتی ہیں کچھ لوگ بلاول بھٹو کے بیان کو بنیاد بنا کر PDM میں درار ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ عثمان خان کی رپورٹ۔ مریم نواز کی گلگت بلتستان سے اسلام آباد واپسی، نائب صدر نون لیگ کو PDM کے خلاف سازشوں کی بو آنے لگی۔ ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا ہم متحد ہیں، متحد رہیں گے۔ بلاول کا بیان بالکل کلیئر تھا اور اس کو مس انٹرپریٹ کرنا تو کچھ لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اب اگر وہ جو ڈوبتی کشتی ہے اس کو تنکے کا سہارا ہے، اور سہارا ان کا یہ ہے کہ وہ PDM کے اندر کوئی کریکس ڈلوانے کی کوشش کریں۔ تو اس پارٹی مسلم لیگ نون اور میں جانتے ہیں کہ یہ کون کروا رہا ہے اور کیوں کروا رہا ہے۔ نائب صدر نون لیگ کا کہنا تھا کہ PDM کا مقصد ایسا پاکستان ہے جو آئین اور قانون کے مطابق چلے، کسی صورت اپنے بیانیے سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان۔ نون لیگ نے اب جو بیانیہ دیکھے، انہوں نے جو بیانیہ اپنا بنا لیا ہے، اب وہ نون لیگ کا بیانیہ نہیں ہے، اب وہ عوام کا بیانیہ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی منزل ہے، ان کا جو اصل مقام ہے وہ پاکستان۔ مریم نواز انتخابی مہم کے سلسلے میں گلگت بلتستان کے دورے پر تھیں۔ سکردو گلگت شاہراہ بند ہونے پر انہیں واپس اسلام آباد آنا پڑا۔ لیگی رہنما اتوار کو دوبارہ گلگت روانہ ہوں گی، 12 نومبر تک GB میں ہی قیام کریں گی۔ عثمان خان، سما، اسلام آباد۔ سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی کا سما کو تہلکہ خیز انٹرویو۔ بولے جب میں نے کہا کہ خلائی مخلوق بیانیہ نہیں تو لوگ ناراض ہو گئے، اب خلائی مخلوق تو کیا شخصیات کا نام لے کر باتیں ہو رہی ہیں، جو ملک کی بد نصیبی ہے۔ اداروں کی شخصیات کا نام لینے کو ناکامی قرار دے دیا۔ شاہد خاقان عباسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جمہوریت کو خطرہ ہے، سول ملٹری تعلقات میں اعتماد نہیں، صورتحال خطرناک ہے۔ خلائی مخلوق آپ لاسٹ میں نے کہہ دیا آپ کے پروگرام پہ کہ وہ ہمارے بیانیے میں نہیں تھا، بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہوئے، اس میں خلائی مخلوق بھی آ جاتی ہے، محکمہ زراعت بھی آ جاتا ہے، اب وہ سارے ختم ہو گئے، اب بات سیدھی ہو گئی ہے۔ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں یہ بدنصیبی ہے ملک کی، یہ باتیں یہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے، یہ لیڈرشپ کا فیلیور ہے، چاہے وہ عسکری لیڈرشپ ہو چاہے وہ سول لیڈرشپ ہو۔ یہ عمران خان کی حکومت ہے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ پرائم منسٹر صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ اگر میری بات نہیں مانی جائے گی تو میں نکال دوں گا، تو اگر انہوں نے یہ نہیں کروایا پھر ان کو پوچھنا چاہیے، ذمہ داری تو ان کی ہے نا۔ ایکسٹینشن اور باجوہ صاحب کا تعلق نہیں ہے، بات آ گئی پارلیمان میں، پارلیمان میں جب بات آ گئی فوج کو ایمبیرس نہیں کرنا چاہیے، اور فوج کو بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی موقع آئے اس کی ایمبیرسمنٹ کا۔ یہ ایک باہمی رشتہ ہوتا ہے، سول ملٹری ریلیشن شپ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر یہ معاملہ قائم رہتا ہے، یہ خفیہ ریلیشن شپ نہیں ہے۔
لیکن یہ ہمیشہ اعتماد کی ریلیشن شپ رہتی ہے. مستقبل میں اس کو واپس اس قانون کو امینڈ کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی. اور آپ دیکھیں گے فوج کی درخواست پہ پارلیمان کرے گا، اس لیے کہ ابہام پیدا ہو گیا. جو عسکری ادارے ہوتے ہیں یہ ابہام میں ڈیل نہیں کرتے. ہمارے ملک میں کب مارشل لا کا خطرہ نہیں ہوتا. یہ سیاسی اور عسکری قیادت کی ذمہ داری ہے کہ بات وہاں تک نہ پہنچے. خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب اعتماد ختم ہو جائے. آج خطرناک سچویشن ہے. اعتماد کی فضا میں بہت حد تک کمی واقع ہو. جب بھی ایسے معاملات ہوں یہ ابتدا ہوتی ہے اور خطرے کی. جب عسکری قیادت یہ سمجھے کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں، یا سیاستدان ہیں وہ یہ سمجھیں کہ عسکری قیادت جو ہے وہ آئین کو توڑ رہی ہے، وہ ملک کو تباہ کر رہی ہے. جب یہ ہمیشہ ہر چیز بات چیت سے حل ہوتی ہے. بندوق کی گولی سے معاملہ حل نہیں ہوتا، آئی جی کو اٹھانے سے نہیں ہوتا. میں نے ان کو وارننگ دی تھی. میں نے کہا اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو نکال دیں. میں کہا پارٹی کا سینئر رہتے ضرور میرے پاس اختیارات ہیں. اور پھر ان سے ہیٹف کو میں نے ووٹ دلوایا. میں جوائنٹ سیٹنگ میں آئے تھے نا، تو آئے. اثر ہوتا ہے ان باتوں کا. اچھا ہوا کہ ریزسٹ نہیں کیا. اگر وفاق اور صوبے کے درمیان گولی چل جاتی پھر کیا ہوتا؟ نواز شریف کا بیانیہ نون لیگ پر بھاری پڑنے لگا. عبد القادر بلوچ کے بعد ثناء اللہ زہری نے بھی پارٹی چھوڑنے کا باضابطہ اعلان کر دیا. کہتے ہیں نواز شریف مودی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. عبد القادر بلوچ نے پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑنے کی پیش گوئی کر دی. قسم کی بات چیت جس وقت ایک پارٹی کے قائد کی طرف سے آتا ہے فوج کے اندر بغاوت کی صورت میں یہ بیج بویا جاتا ہے بغاوت کا. یہ تو نواز شریف نے وہ ہم سے کام کیا ہے، آپ کو لا کے چوراہے پہ جو ہے آپ کے کپڑے اتار کے جو ہے آپ کو چھوڑ دے. کراچی کے جلسے کا تعلق ہے، وہاں پر ڈائریکٹلی چیف آف آرمی اسٹاف کا نام نہیں لیا گیا تھا. پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑنے والی ہے. بیماری کا بہانہ کر کے جا کے ادھر بیٹھ گئے، آرمی چیف کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. وہ مودی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. یہی آرمی چیف میاں نواز شریف صاحب کے اپوائنٹی ہیں. اس سے پہلے والے چیف کو بھی انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا. ہر ایک کے ساتھ ان کی ڈس ایگریمنٹ ہوتی رہی ہے. یا لیڈر تمہاری طرح نہیں ہوتے کہ بگوڑا بن کے جا کے ادھر بیٹھ جاؤ. بے وفا آدمی ہے. بلوچستان میں نواز شریف کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ایسے رلتا رہتا تھا ادھر آ کے. آگے دیکھیے انتخابی جوش، کھو بیٹھے ہوش. نون لیگ کو بلوچستان میں بڑا دھچکا. صوبائی صدر سے لے کر ضلع تک سینکڑوں عہدیدار مستعفی ہو گئے. احسن اقبال کہتے ہیں ثناء اللہ زہری 2 سال سے پارٹی میں غیر فعال تھے. شاہد خاقان بولے عبد القادر بلوچ نے آج اپنی سیاست تباہ کر لی. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد عاطف. مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر عبد القادر بلوچ نواب ثناء اللہ زہری کے ساتھ صوبائی نائب صدر نواب شمبیزئی، کلاٹ ڈویژن کے جنرل سیکرٹری سمیت درجنوں عہدیدار اور کارکن مستعفی ہو گئے. نون لیگ کے مرکزی رہنما احسن اقبال نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نواب ثناء اللہ زہری 2 سال پہلے ہی پارٹی سے فارغ ہو چکے تھے. 2 اشخاص کے نکلنے سے وہاں پر کسی قسم کا کوئی تنظیمی نقصان اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ نواب ثناء اللہ زہری صاحب تو 2 سال سے غیر فعال ہو چکے تھے اور وہ پارٹی کے سامنے خود شرمندہ تھے کہ وہ اپنی صوبائی حکومت کا دفاع نہیں کر سکے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ عبد القادر بلوچ نے آج اپنی سیاست کو تباہ کر دیا. بدقسمتی ہے کیونکہ انہوں نے صرف اپنی سیاست کو تباہ کیا ہے اور جو عزت و وقار ان کا تھا اس کو مجروح کیا ہے. نون لیگ سے مستعفی قائدین نے کہا کہ مشاورت کے بعد نیا سیٹ اپ بنانے کا اعلان کریں گے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر مجیب اللہ کے ساتھ محمد عاطف، سما، کوئٹہ. عبد القادر بلوچ نے دورہ بلوچستان کے دوران مریم نواز کے نامناسب رویے کا شکوہ بھی کیا. کہا مریم نواز ورکرز کنونشن میں خطاب کے بعد پاؤں پٹک کر نکل گئیں. کارکنان سے ملنا تک گوارا نہ کیا. ان کے اس عمل سے تکلیف ہوئی. یہی ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آتے ہو اور آ کے خواتین اور حضرات سے ملے بغیر یہاں سے چلے جاتے ہو. وہ آپ سے تھوڑی دیر کے لیے آپ وہاں آئیں، ان کو ایڈریس کریں. آتی ہے، تقریر کرتی ہے اور تقریر کر کے پاؤں پٹکتے ہوئے سیدھے نکل جاتے ہیں. اس خاتون نے جو کہ اس وقت خواب دیکھ رہی ہے پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا،
जो ख्वाब देख रही है बेनजीर भुट्टो बनने का, उसकी इखलाकी तरबियत ये थी कि इसमें उसकी क्या जाता अगर वो सिर्फ हेलो करता, एक खातून से भी हाथ मिलाती वहां पर। और मोहम्मद जुबैर कहते हैं, मरियम नवाज के मेरे बारे में बयान का बयानिए से कोई ताल्लुक नहीं, सब मुत्तफिक हैं कि लोटाक्रेसी नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ की गुजरांवाला जलसे में तकरीर वाकई सरप्राइज थी, लेकिन ये किसी के लिए पॉजिटिव और किसी के लिए नेगेटिव थी। भुट्टो ने बिल्कुल सही कहा, सच बोला कि यस ही वाज सरप्राइज्ड और टेकन अबैक। और कोई भी शख्स अगर वहाँ गुजरांवाला जलसे पे मौजूद होता या जो टीवी पर सुन रहा था, मेरा ख्याल है सबके लिए ही एक सरप्राइज़ था। कुछ के लिए पॉजिटिव सरप्राइज़ था, प्लेजेंट सरप्राइज़ था, और कुछ के लिए नेगेटिव था। मरीम नवाज़ ने जिस बात पर कहा, जब कल जलसे में मेरा नाम लिया, उसका बयानी से कोई ताल्लुक़ नहीं। बयानिया तो बड़ा क्लियर है। मैं कराची में बैठा था, मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ स्कर्दू में थी, और कई दफ़ा मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ हो जाता है। उसमें कोई, मेरा ख्याल है, कोई ओवरऑल कंसेप्ट से किसी को डिसएग्रीमेंट नहीं है कि लोटाक्रेसी पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर इंतखाबी जोश में होश खो बैठे। PTI रहनुमा ने जलसे से खिताब के दौरान मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए। क्या कहा, आपको सुनवा देते हैं। मरियम कंपेयर पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। मैं आप में से किसी को भी उठा लूं, और जितना पैसा इसने आपके टैक्स का लगाया है ऑन रिकॉर्ड, उसका इतना भी लगा लूं, तो आप सारे ब्रैड पिट और टॉम क्रूज बन जाओगे। बिलावल जरदारी कहता है कि ये बड़े बहादुर लोग हैं, बहादुरी से बात करो। तो कह रहा था आपको बहादुर आदमी चाहिए, मैं हूँ वो बहादुर आदमी। और तू पहले आदमी तो बन, बहादुर तो बाद में बनेगा। और अल्लाह की लाठी पे आवाज है, जरदारी सुन ले, जो जुल्म किया, हमारे बच्चों का खून चूसा, अल्लाह की ये सजा है। ये बिलावल मिला है कि मिली है, पता नहीं क्या है। बीमारी असल या नकल, तफसीलात बताएंगे इसी बुलेटिन में। जनवरी में लॉन्ग मार्च, फरवरी में हुकूमत घर चली जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन के इरादे बता दिए। दियामीर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा, कठपुतली की हुकूमत गिरने वाली है, हुकूमत के इत्तेहादी उनको छोड़कर जा रहे हैं। इलेक्शन के दौरान आपका वजीर आजम साहब ने एक यू टर्न लिया, कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पूरी सूबा दे दूँ। जो खुद पूरी वजीर आजम है वो कैसे सूबे बनाऊंगा? ये वो वजीर आजम साहब है जिसका हर बात झूठा निकला, जिसका हर वादा झूठा निकला। खुद अपना हुकूमत गिरने वाला है। जनवरी में आपका लॉन्ग मार्च शुरू होगा और फरवरी तक ये तो घर चले जाएगा। हुकूमत के इत्तेहादी अभी से उनको छोड़ रहे हैं। जाली सियासतदान है कि पुतली जमाते हैं, अगर वो सूबे के नाम पे आप पे मजीद टैक्स डालने की कोशिश करेंगे तो हम इनको नहीं करने देंगे। मुस्लिम लीग की हुकूमत आपने देखा है, PTI की हुकूमत चल रही है, आप फैसला करें। 15 नवंबर पे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपना फैसला सुनाएंगे। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद ने नवाज शरीफ की तकरीर पर बिलावल के बयान को दानिशमंदी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ नहीं चल सकती। ये भी कहा कि 30 दिसंबर तक दोनों की राहें जुदा हो जाएंगी। 16 तारीख से नई बातें मिलना शुरू हो जाएंगी। सारी पार्टियां भरपूर इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं गिलगित बल्तिस्तान में। हारने वाले अब इस हार को तस्लीम करते हैं कि वो नहीं तस्लीम करते। कल बिलावल भुट्टो ने एक ज़िम्मेदाराना सोच का अंदिया दिया है कि PDM में फ़ौज को निशाना बनाने का या फ़ौज के जनरल्स का नाम लेकर निशाना बनाने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ था। 30 दिसंबर से 20 फरवरी तक पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं चलेगी।
कम अज़ कम वो इस्तीफे नहीं देंगे। नवाज शरीफ और मरियम साहबा जिस तरफ सियासत को लेके जा रही हैं वो सियासत एक बंद गली की तरफ जाती है। जूडो कराटे का नतीजा जो होगा वो खिलाफ तवक्के होगा। मुल्क में मार्शल लॉ नहीं आ सकता। एक ने दिसंबर का पार्टी ने टाइम दिया है, एक ने जनवरी का दिया है। मैं 20 फरवरी को इंशाल्लाह आपको आगे यहाँ बताऊंगा कि इमरान खान 5 साल पूरे कर देंगे। तो 59वें सदारती इंतखाब का नतीजा आ गया है। रिपब्लिकन हुकूमत से छिन गई है, डेमोक्रेट्स बाजी ले गए हैं, ट्रंप को शिकस्त हुई है, जो बाइडन अमेरिका के नए सदर बन गए हैं। पेंसिल्वेनिया का नतीजा भी बाइडन के हक में आ गया है। 284 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं जो बाइडन ने, और 2021 में वो अब सदारत का हलफ उठाएंगे। अमरीकी इंतखाबात का वाज़े नतीजा सामने आया है। 59वें सदारती इंतखाब का ये नतीजा है। अमरीका के नए सदर जो बाइडन मुंतखब हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मुद्दत के लिए कामयाब ना हो सके। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया इंतखाबात में, मगर वो इसको साबित ना कर सके, और यूं डेमोक्रेट के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन अमरीका के नए सदर मुंतखब हो गए। बिल्कुल फवाद, और इस बर्तरी से पहले ही जो बाइडन ये कह चुके थे, खासे पुरुमीद थे, उनका ये कहना था कि फतह उनकी ही होगी, लेकिन वोटों की गिनती मुकम्मल होने तक वो फतह का ऐलान नहीं करेंगे, ये उनकी जानिब से कहा गया था। अलबत्ता नताइज में ताख़ीर भी हुई, और लेकिन इसके बाद भी जो बाइडन इंतहाई पुरुमीद थे, उनको ये लगता था कि अमेरिका के सदर वही होंगे। और जो 8 रियासतें हैं फवाद, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि स्विंग स्टेट्स हैं, जिनके नताइज जिसके हक में जाएंगे वही अमरीकी सदर बन पाएगा, तो ज़्यादातर जो रियासतें हैं पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, एरिज़ोना और नेवाडा, ये जो बाइडन की बर्तरी पहले ही बता रही थी, और अब ये फैसला सामने आ चुका है कि जो बाइडन ही अमेरिका के नए सदर हैं। और सबको ही ये इंतज़ार था, सारी दुनिया की नज़रें इन इंतखाबात पर थीं और नतीजे पर थीं। सभी इंतज़ार कर रहे थे कि पता चले कि कौन सदर मुंतखब होगा। तो अब ये मुसद्दिक़ा इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि अमरीका के नए सदर जो बाइडन मुंतखब हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कोरोना ने एक बार फिर मुल्क में खतरे की घंटी बजा दी है। 24 घंटों में मजीद 1500 से जायद केसेस सामने आए हैं। 20 अफराद जान से गए। गुज़श्ता 3 रोज़ की बात की जाए तो यौमिया 1300 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि मरने वालों की तादाद भी 20 या इससे जायद है। मुल्क में अब तक कोरोना से 6943 अफराद जान बहक हो चुके हैं। कोरोना से निपटने के लिए बड़े शहरों में मजीद सख्त इकदाम। मास्क न पहनने पर 100 रुपए जुर्माने का फैसला। सिंध हुकूमत भी एक्शन में आ गई। बेएहतियाती के बाइस कोरोना फिर बेकाबू। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के वबा की रोकथाम के लिए अहम फैसले। SOPs पर अमल दरामद के लिए कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत 16 बड़े शहरों में इकदाम सख्त। मास्क ना पहनने वाले शहरियों को 100 रुपए जुर्माने के साथ 3 अदद मास्क भी दिए जाएंगे। हुकूमत सिंध ने कार में 2 से ज्यादा अफराद के बैठने पर पाबंदी लगा दी। 55 साल से जायद उम्र वालों को दफातर बुलाने पर कंपनीज के खिलाफ एक्शन होगा। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे कोरोना के निशाने पर हैं। नए केसेस सामने आने पर 2 यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ शोबों को सील करने का फैसला कर लिया गया। फैसलाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। पेशावर में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में SOPs की खिलाफ वर्जी सामने आई। नशिस्तों में समाजी फासले का ख्याल ना रखा गया। 6 फीट के बजाय 3-3 फीट के फासले से कुर्सियां लगाई गईं। सिंध हुकूमत की कोरोना SOPs पर अमल के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची में मास्क ना पहनने वाले को 500 रुपए जुर्माना होगा। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कोरोना का पलट कर हमला। मौसम सरमा शुरू होते ही वायरस फिर गर्मी दिखाने लगा। सूबाई महकमे दाखिला के नए हिदायतनामे के बाद अवामी मकामात पर सख्तियाँ। अभी भी मैंने 4L को चालान दिया है, इसलिए हम SOP की खिलाफ वर्जी में 520 का चालान देते हैं। जिला वस्ती में 26 अफराद से 13,000 रुपए बटोर लिए गए। जिला जनूबी में खिलाफ वर्जी पर एक रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान को सील कर दिया गया। इंतजामिया खबरदार कर चुकी है कि जिस इलाके में कोरोना के ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए वहां लॉकडाउन कर दिया जाएगा। किस तरह कमाएंगे, किस तरह खाएंगे? कोरोना के बजाय तो बेचारे भूखे मर जाएंगे हम लोग। पैसे लेते हैं, फिर
2 घंटे पहले सील होगी, 2 घंटे बाद दुकानें खुल जाएगी वापस उसी तरह से। दूसरी जानिब शहरी इंतजामिया इम्तियाजी सुलूक उतर आई है। सख्त इक़दामात की आड़ में मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जा रहा है। कैमरामैन अली मुशर्रफ और कासिम रईस के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। 20 नवंबर के बाद शादी की तकरीबात हॉल्स के बजाय खुले मुकामात पर करने की पाबंदी हुकूमती फैसले ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद लुकमान। शादी हॉल बुक हो गए, कार्ड भी तकसीम कर दिए और फिर लग गई पाबंदी। नवंबर और दिसंबर में बुकिंग कराने वाले परेशान हैं। इशूज़ हैं क्योंकि अब सारी चीज़ें जो है ना हमें काफ़ी जल्दी में करनी पड़ रही हैं। इवन कि हमारे अगर कार्ड प्रिंट हुए तो वो भी सारे कैंसिल करके दोबारा प्रिंटिंग करनी पड़ रही है। जल्दी में शादी की तारीख तब्दील करने वाले कहते हैं इतनी जल्दी में दुल्हन के कपड़े कैसे तैयार होंगे। दुल्हन का जो है ना लहंगे कहा हुआ था तो वो उन्होंने डिलीवर करना था, मतलब 25 नवंबर को करना था। अब वो कैंसिल कराया, फिर हम रेडीमेड ले रहे हैं। उधर शादी हॉल एसोसिएशन वाले भी फैसले से खुश नहीं। कहते हैं एसओपीज पर अमल करने से शादी हॉल में कोरोना नहीं फैलता। उनके कारोबार को बिला वजह नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कैमरामैन साद नवीद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। अफसोसनाक खबर आपको दें, लाहौर से 2 बहनों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। ग्रीन टाउन में मां बेटी को बेटे और देवर ने मौत के घाट उतार दिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। गुज्जरपुरा में 16 साला मरियम और 15 साला किरण की लाशें घर से मिली। पुरसा तदफीन की तैयारी में थे कि पुलिस पहुंच गई। तफ्तीश हुई तो बाप और भाई मुलजिम निकले, जिन्होंने कत्ल का एतराफ कर लिया। उन्होंने 9 बजे का ऐलान भी किया। हम लोग आए हैं जब, तो हमने पूछा कि भाई क्या हुआ है, तो हमारा मोहल्लेदार है वो, तो उसने कहा यार मैं आया था, एक बच्ची नीचे पड़ी हुई थी, एक ऊपर पड़ी हुई थी। दूसरा वाकया ग्रीन टाउन में पेश आया। कातिल ने तेज धार आले के वार करके 3 साला उरूज और उसकी मां नाजिया को कत्ल कर दिया। पुलिस ने भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। किसी तेज धार आले से इनको मल्टीपल इंजरीज हैं दोनों की, जिसके जरिए इनको मर्डर किया गया। पुलिस के मुताबिक नाजिया और उसकी बेटी को सौतेले बेटे और देवर ने कत्ल किया। दोनों मफरूर हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस छापे मार रही है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची के इलाके जंजाल गोट में बाहिम्मत दुकानदार ने डाकू को पिस्तौल छीन कर फायरिंग कर दी। एक डाकू हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। मुलजिमान स्टोर में डकैती करने आए थे। पुलिस के मुताबिक दुकानदार को भारी पड़ता देखकर 2 डाकू फरार हो गए। एक मुलजिम को करीबी दुकानदारों ने पकड़ लिया, जिसे तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिमान से 2 पिस्टल भी बरामद हुए हैं। नवाज शरीफ जाली मेडिकल रिपोर्ट्स का सहारा लेकर बाहर गए या वाकई बीमार थे? तहकीकात के लिए दायर दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी बेंच बना दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर हुकूमती वज़रा के बयानात और सवालात। क्या साबिक वज़ीर आज़म के प्लेटलेट सच में कम हुए थे? मेडिकल रिपोर्ट्स शफाफ तरीके से तैयार हुई थी या नहीं? तहकीकात के लिए दायर शहरी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। नवाज शरीफ को बजरिया इश्तिहार सरेंडर करने के लिए दी गई मोहलत खत्म होने पर 24 नवंबर को जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी मेडिकल रिपोर्ट्स की कमीशन के जरिए तहकीकात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत करेंगे। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में मरकजी अपीलें भी उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर हैं। शहरी जमान मुगल की जानिब से दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि कई हुकूमती वज़रा मियाँ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली करार दे चुके। साबिक वज़ीर आज़म बैरून मुल्क बैठकर कौमी इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। अदालत तहकीकात के लिए टीम या कमीशन तश्कील देकर मामले की छानबीन करे। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। नून लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर को नैब हंगामा आराई केस में गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट करेंगे आरिफ मलिक। नैब ऑफिस के सामने पथराव और हंगामाराई का केस। इमरान नज़ीर पुलिस के शिकंजे में आ गए। पहले नून लीगी एमपीए की गाड़ी तहवील में ली गई, बाद में थाना चौक की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जलसे से घबरा गए। जलसा तो होगा भाई, हमें पकड़ना हमें पकड़ो, गाड़ी पकड़नी गाड़ी पकड़ो, जो करना है करो, लेकिन जलसा होगा इंशाअल्लाह। ख्वाजा इमरान नज़ीर से इज़हार यकजहती के लिए ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक थाने पहुँचे। इस मौका पर लीगी रहनुमाओं का कहना था गिरफ्तारी का मकसद पीडीएम को नुकसान पहुँचाना है। कि जो भी हुकूमत ये काम करती है वो खुद ही एक्सपोज होती है, और मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि इस हुकूमत की टांगें भी कांप रही हैं, हाथ भी लरज रहे हैं, दिल भी डूब रहा है, और इस हुकूमत के माथे पे पसीना भी है।
लीगी रहनुमाओं ने इमरान नज़ीर की जमानत के लिए कानूनी टीम को भी मुतहरिक कर दिया है। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने तमाम फ्रेट ट्रेनों को निजी शोबे की मदद से चलाने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि 12 मुसाफिर ट्रेनें भी निजी सेक्टर को दी जाएंगी। मैं रेलवे को 5 फ्रेट ट्रेनें प्राइवेट सेक्टर को दे दी हैं, 12 पैसेंजर ट्रेनें प्राइवेट करने जा रहा हूँ। 12 तारीख को बाकी के टेंडर खुल रहे हैं। जो ट्रेन मुझे नुकसान देती है और प्राइवेट सेक्टर में मुझे 25% ज़्यादा नफ़ा देती है तो मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं प्राइवेट सेक्टर में न दूँ। मैं कराची में ऐलान करता हूँ कि मैं सारी फ्रेट ट्रेनें प्राइवेटाइज कर दूँगा। बुलेटिन में कुछ दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ते हैं। कराची में साहिल को साफ करने का मिशन। वसीम अकरम की अहलिया शनेरा अकरम ने डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर कचरा उठाया। आवाम की गफलत और हुकूमत की लापरवाही के बायस साहिल के हुस्न को दाग लगा तो क्लीन योर सिटी ड्राइव शुरू कर दी गई। शनीरा अकरम की शहरे कायद से मोहब्बत उनकी बातों से झलक रही थी। I love Karachi. It's my home. We all have one thing in common, and that's we all want Karachi clean. Correct? Yes? Yes? सफाई मुहिम में नौजवान लड़के और लड़कियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आवाम से कचरा ना फेंकने की अपील की। सीव्यू तो हमें एक नेमत मिली हुई है जो हम ऐसे ही कचरा छोड़ देते हैं, जो बहुत गलत बात है। डिप्टी कमिश्नर साउथ खबरदार कर गए कि कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। क्लिफ्टन बीच के 6 एकड़ रकबे से कई टन कचरा उठाया गया। साहिल को मुकम्मल साफ करने तक मुहिम जारी रहेगी। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। और कराची में लूट मार की वारदातें भी जारी हैं। जमशेद क्वार्टर थाने के करीब डाकू फास्ट फूड की दुकान को लूट कर फरार हो गए। CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे आमिर मजीद। जी बिल्कुल, कराची में डकैतों की दीदा दलेरी बढ़ती ही चली जा रही है। 2 नवंबर को रात 10 बजे न्यू टाउन में वाक़े एक फास्ट फूड सेंटर पे लूटमार का वाक़या पेश आया, जिसकी CCTV फुटेज भी मंजर आम पे आ चुकी है। इसमें देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवान एक फास्ट फूड सेंटर के बाहर आते हैं। वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उनसे छीना झपटी करते हैं। ये सामने गली है और इस गली में थाना जमशेद क्वार्टर्स वाक़े है। थाने के करीब मौजूद और कानून नाफिज करने वाले इदारों के यहाँ पर मौजूदगी के बावजूद यहाँ पर लूट मार की वारदात होना एक बड़ा सवालिया निशान है। जी आमिर, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कराची में ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम है। नुमाइश चरंगी पर रैली के बायस अहम तरीन शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। शाम को दफातर से घर जाने वाले सड़कों पर रुल गए। काम के लिए बाहर आने वालों को भी ट्रैफिक जाने में खूब सताया। आयशा मंजिल, लियाकताबाद, तीन हट्टी और गुरु मंदिर समेत अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। सूरत हाल को संभालना ट्रैफिक पुलिस के बस से भी बाहर हो गया। ब्रेक के बाद हेडलाइंस देखते रहिए समा।